اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج یہاں انگلینڈ میں تو عاشورہ ہے 10 تاریخ محرم کی، اور محرم کا مہینے میں ہم سب سنی مسلمان بھی شیعہ بن جاتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے ملکوں میں پاکستان میں اور انڈیا اور سب بنگلہ دیش، کیونکہ راوزیوں کا پروبنڈ اتنا زیادہ ہے کہ ہم ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم وہ ساری روایتیں شروع کر دیتے ہیں جو راوزی روایتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے ان کا وجود ہوا ہے، ان کا وجود ظاہر بات ہے کہ وہ دور نبوت میں تو تھے نہیں، دور صدیق، دور عمر میں بھی نہیں تھے۔ حضرت عثمان کے دور میں شرارت شروع ہوئی تھی عبداللہ ابن سبا کی، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت ہوئی۔ بعد میں اسی کے ذیل میں جمل و صفین اور واقع کربلا اور یہ سارے حادثات پیش آئے ہیں، لیکن مرتب طور پر ان کا 4 صدی ہجری میں ہوا۔ اہل بیت کے نام پر انہوں نے ایک بہت ہی خبیث مذہب کا گویا کی بنیاد رکھی، جس کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ ایک تو ہے تبرہ، گالیاں بکنا۔ کس کو؟ خلفاء راشدین کو، صحابہ کرام کو، اور ان بہترین لوگوں کو جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیے، دنیا میں 65 لاکھ مربع میل کا علاقہ خلفاء راشدین کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا۔ 65 لاکھ مربع میل، یعنی آباد دنیا کا اکثر علاقہ، متمدن دنیا کا بیشتر علاقہ۔ اتنی بڑی سلطنت دنیا میں کبھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ آج رشیا بہت بڑا کہلاتا ہے، امریکہ بڑا ملک کہلاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے رومن امپائر بڑی کہلاتی تھی، لیکن یہ سب کچھ بھی نہیں تھے اس کے مقابلے میں جو صحابہ نے قائم کی تھی۔ پھر صحابہ کی فتوحات دلوں کی فتوحات تھی۔ آج وہ علاقے جو صحابہ کے ہاتھ پر فتح ہوئے تھے اسی طرح پر عالم اسلام کا حصہ ہیں۔ اسکندر اعظم ہو یا چنگیز خان ہو یا اور جتنے بھی فاتحین دنیا میں آئے ہیں، ان کی وقتی فتوحات تھی بس چند سالوں کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دور جو ہے واقعی یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کیا، چونکہ ازلی علم ہے، ہمیشہ تک ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، کروڑوں اربوں سال کے بعد کیا ہوگا یہ بھی اللہ کو علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے ان کی بدبختی کو اور ان کے فساد کو، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اگر کسی کی تعریف کی ہے تو صدیق اکبر کے ثانی اسنین کہہ کر غار میں، اور یہ کہ ہم ان دونوں کے ساتھ تھے۔ اور کسی کی تعریف کی ہے تو پاکیزگی بیان کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کی آیت اتری ان کے لیے۔ اور حضرت زید، تو حضرت زید کو کبھی بھی اپنا راوزی نہیں مان سکتے ان کو۔ اور ان کے جو 12 امام ہیں ہمارے بھی ہیں، لیکن جس طرح پر قرآن، توریت اور انجیل نے بالاتفاق جن کی مذمت کی ہے، جن پر لعنت کی ہے، جن پر پھٹکار کی ہے، اور جنہیں وہ ہے یہودی، وہ ہیں بنی اسرائیلی، اسی طرح پر تمام ائمہ اہل بیت نے بالاتفاق جن کی مذمت کی ہے، جن پر لعنت بھیجی ہے، جن کا پھٹکار کی ہے، وہ کون ہے؟ وہ یہ راوزی ہیں۔ سارے ائمہ اہل، ان کے جو 12 امام ہیں ہمارے بھی ہیں، ان کے جو 12 امام ہیں وہ سب عرب تھے، ان میں کوئی ایرانی نہیں تھا۔ ان سب کی مائیں، صدیق اکبر، عمر فاروق، ان کے خاندان سے تھیں۔
इन सब को की तरबियत उन मुबारक सहाबा और ताबीन लोगों ने की थी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने तो इरादा किया था इन सब को जिंदा जलाने का, जो अल्लाह का अज़ाब है, जिसका मना किया था हुजूर ने। लेकिन जिस तरह खमीनी भागकर पहुंच गया था, इस तरह ये भाग गया अब्दुल्लाह इब्न सबा, और कई बहुत सारों को सजा भी दी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये भी अल्लाह की शान है। बाद आने वाले फातिहीन मुस्लिम जिन्होंने लाखों और हजारों मील का फतह किया, वो तो फजीलत के एतबार से इन आले बैत के अइम्मा से कुछ भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उनके हाथ से फतह कराया। इनके हाथ से 1 इंच जमीन भी फतह नहीं कराई। 12 इमामों बैत की बात कर रहा हूं मैं, इनके 12 इमामों की जो हमारे भी हैं, और हजरत अली, इनके हाथ पर 1 इंच जमीन भी फतह, ये अल्लाह का फैसला था। बहरहाल इस वक्त में 4वीं सदी हिजरी जब इन्होंने अपना मजहब बनाया और अहले बैत की तरफ मंसूब कर दिया, इसलिए इनके पास तो कुरान को तो ये मानते ही नहीं। इनका ये कहना है कि कुरान पाक की 18,000 आयतें थी 6,000 के बजाय, और उनमें एक भी आयत वो नहीं थी जो आज कुरान में है। यही फसाद है कि भारत में हर जगह ये शरारतें का फिर है। वो मुख्तार नकवी जो है एक खबीस वहां पर, जो बीजेपी का स्पोकमैन बना हुआ है, और दूसरा वो वसीम रिजवी कहता है कुरान की 28 आयतें निकाल दी जाएं, क्योंकि उसने तो बचपन से ये सुना है ना कि कुरान पूरा बदल दिया गया, कुरान का पूरा ये हो गया वो हो गया, और इसमें से एक आयत भी नहीं थी असल कुरान में, ये हटा दी हजरत उस्मान ने, हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने। तो ये बकवास करता फिरता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पूरी तारीख इनकी देखें कि ये सेहुनी और सलीबी और राफजी ये तीनों कर जोड़ रहा है। इन्होंने मिलकर आलम इस्लाम को ताराज किया है, तबाह किया है, और आज भी कर रहे हैं। आज ईरान ये दावा कर रहा है कि हम एटमी ताकत बनने वाले हैं। जाहिर बात है इन्हीं सलेबी और सेहुनी बना रहे इनको। इमाम खमीनी को वहां ले जाकर फ्रांस पे सारा प्रोपगंडा ही नहीं यूरोप अमेरिका के इन्होंने किया था, इस्लामी इंकलाब का नारा देकर। हालांकि इस्लाम से खमीनी का कोई ताल्लुक नहीं था। लोगों को धोखा देने के लिए नारे भी ला शर्किया वाला गरबिया इस्लामिया इस्लामिया, ला शिया वाला सुन्निया इस्लामिया, ये सिर्फ धोखा देने के लिए था। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग तो धोखे की हालत में दुनिया से चले गए, और जिनके सामने हकीकत वाज़ेह हुई उन्होंने अपनी नदामत के इज़हार किया और तरदीद की कि हम धोखा खा गए थे। तो मार्ज कर रहा था कि एहसान फरामोश नस्ल है ये पूरी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को कितना बड़ा एहसान है कि उन्होंने ईरान को फतह किया। अगर ईरान इस्लाम पर कहता है अपने आप को, तो ईमान और इस्लाम की दौलत किसने दी है? और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने सिर्फ ये नहीं बल्कि उन पर एक बहुत बड़ा एहसान किया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में जो इलाके फतह होते थे, उनकी ज़मीनें और उनके लोग गुलाम बांदी बनाकर मुजाहिदीन में तकसीम कर दिए जाते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि बेहतरीन इलाके सल्तनत रोमा के और सल्तनत फारिस के फतह हुए हैं, वो बेहतरीन इलाके दुनिया के। तो हज़रत उमर ने इज्तिहाद किया और ये फरमाया कि देखो, बजाय इसके कि मैं तुमको तकसीम कर दूं, इनको गुलाम बांदी बनाकर, और ज़मीनें भी तकसीम कर दूं, तो क़यामत आने वाली उम्मत को मुझे इंतज़ाम करना है, उनके यतीमों, उनके बेवाओं का है, और लश्करों का और ज़रूरतमंदों का मैं कहाँ से करूँगा? इसलिए ज़मीन उनके पास रहने दो, और उन पर उशर और खराज जो शरई गैर मुस्लिमों पर होता है, तो उशर और खराज करके
उनकी आमदनी से मैं क़यामत तक के लोगों का इंतज़ाम करूँगा। अगर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ना करते तो ये सारी ईरानी कौम गुलाम बांदी बन के तकसीम कर दी जाती, और वो ज़मीन जिस पर मस्सी कर रहे हैं पेट्रोल निकलने की वजह से, वो ज़मीन भी मुजाहिदीन में तकसीम कर दी जाती। इतना बड़ा एहसान है, लेकिन इनका हाल क्या है? इन एहसान फरामोशों का हाल ये है कि सबसे ज़्यादा गाली हज़रत उमर को देते हैं, जिसकी बदौलत इस्लाम आया और जिसकी बदौलत ज़मीन उनके पास रही। और तबर्रा उन मुक़द्दस हस्तियों पर करते हैं गाली बकना, कि अगर कोई मेरे बाप को गाली दे तो क्या मेरा उससे इत्तेहाद हो सकता है? तो हमारे बाप दादा सारे कुर्बान जिनकी अज़मत पर, उनको तुम गाली दो और समझते हो कि हम तुम्हारे साथ इत्तेहाद हो सकता है हमारा? तो मैं अर्ज कर रहा था कि पूरी तारीख गवाह है कि इनके हाथ मिले हुए हैं सलेबियों सेहूनियों से। और आज भी ये हाल है। मुझे याद है 1914 में हमास ने भरपूर मुकाबला किया था, इस तरह कभी नहीं हुआ था, इतना इसराइल का नुकसान नहीं हुआ था। उसके फौजी रोते हुए नजर आए सारे अपने साथियों की याद में। और वजह क्या थी? ये जो गद्दार दोस्त बनकर इनके साथ मिले हुए थे, ये नहीं थे रावजी, जो निशानदेही करते और उनको बताते कि यहाँ पर हैं ये फ़लस्तीन के ज़ुआमा और लीडर और बड़े बड़े लोग। हाँ, मुत्तहदा इमारत ने भेजा था नर्सों डॉक्टरों काफिला जासूसी करने के लिए, तो फ़लस्तीन के भूखे बच्चों ने कहा कि वापस जाओ, तुम गद्दार हो, तुम्हारा हम भूखे मर जाएंगे, तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सीरिया का जो इलाका जो तीनों मज़ाहिब का मरकज़ रहा है, ईसाइयत का, इस्लाम का और यहूदियत का, और अनकरीब फिर वो आलम इस्लाम का मरकज़ बनने वाला है, उसी दज्जाल की तलाश में ये जो है वो बैरुल मुक़द्दस की तकरीब और गिरा रहे हैं। और आज भी आजकल रोज़ाना वहाँ पर बेकसूर वाक़तन वो आलम इस्लाम की तरफ से कुर्बानी दे रहे हैं। ये कुर्बानी हम सब की तरफ से है। और वो मुजाहिद हैं कि एक बच्चा शहीद हो जाता, बाप दूसरों को पेश कर देता, तीसरों को पेश करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और ईरान आज भी इनके हाथ में लाए हुए हैं, यहूदियों से और ईसाइयों से। सीरिया में इन मक्कारों ने, बरतानिया और फ्रांस, एक तरफ इनको झांसा दिया कि तुर्की गैर अरब हैं, अरबों का हक है, लिहाजा तुम बगावत करो। कर्ल लॉरेंस जैसे कितने भी इनके जासूसों ने भड़काया, बहकाया और आमादा किया। दूसरी तरफ साइको पैक्ट नाम का मुआहदा बरतानिया और फ्रांस ने अंदर में कर लिया कि हम उनको आज़ाद नहीं करेंगे, आपस में तकसीम कर लेंगे। और बरतानिया ने फ़लस्तीन में इंतज़ाम किया कि बेहतरीन सारी ज़मीनें जो जिस वक्त वहाँ पर यहूदियों की तादाद चंद सौ थी, हज़ार भी नहीं, सारे यहूदियों को दे दी गई। बेहतरीन आज आप देखें कि छोटी सी पट्टी है गाज़ा की जो मुसलमानों के पास है। और फ्रांस ने ये जो खबीस है बशारुल असद, जिसको इस्नाचरी यानी ईरानी भी मानते हैं कि वो काफिर हैं, उनके अकीदे हज़रत अली के खुदा होने के हैं, उनके अकीदे शराब के हलाल होने के हैं, उनके अकीदे है कि हज़रत अली ने रसूलुल्लाह को पैदा किया, और ये बहुत ही गलत मानते हैं। लेकिन फिर भी पूरी यानी 1 से 10 तक इनका दुश्मन मुसलमान है, 11 नंबर पर कोई यहूदी ईसाई होगा। तो आज भी इनकी शरारतें जारी है। और आज भी ये हाल है कि इन्होंने